Once again to the political science session. We were in the last video we discussed about Indian judicial system. So let me introduce again once again. Judiciary works to give justice and thus helps to remove injustice from the society, thus helps in establishing a healthy society. Secondly, we discussed need for laws to develop tolerance and peace among the people with different opinion, thoughts, perspectives and culture, to establish social justice and equality, to protect the weaker sections of society, women, children, differently abled and transgenders, to preserve the values of freedom, equality and democracy. This strengthens the democracy. To make fundamental rights available to citizens, to protect the rule of law. Necessity for judicial system for resolving social conflicts impartially and in accordance with the laws, for asking justice for conflicts of interest arising between the individual and the government, for actively supporting the government to establish social justice and equality, and to bring weaker sections in the mainstream of the society, for widening, deepening, and strengthening of democracy, for preventing the emergence of repressive and authoritarian groups and individuals and protecting the rights of people, for contributing towards the progress of the nation by protecting individuals' freedom, nation's freedom, and also the constitution. We also discussed children regarding structure of judiciary. While discussing with structure, there is one judicial system in the whole India and no division of courts between the central and constituent states. Supreme Court is the apex court, means highest court. Under it there are high courts. High court control the district court. At the bottom of structure are lower courts. So integrated judicial system is सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज रहता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, Chief Justice of India. I also discussed who is present Chief Justice of India. Last time I told you S.A. Bobde. The President appoints the Chief Justice of India and other judges of Supreme Court. Means, so to say, all the judges are appointed by the President. By the convention, the senior-most judge of the Supreme Court is appointed as Chief Justice. The judiciary should not work under any kind of pressure. प्रेसिडेंट से अपॉइंट हुए तो प्रेसिडेंट का सुनना ऐसा ज़रूरी नहीं है. मीन्स द जुडिशियरी सिस्टम शुड नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर. The independence of the judiciary is maintained so as to enable the judge to fearlessly carry out the function of giving justice. जज को कोई चाकू वगैरह दिखा के या ऐसा कुछ करके जज को हरासमेंट नहीं करना है. जज जुडिशियरी मेंटेन करना है म्हणजे जज को इंडिपेंडेंट छोड़ना है और क्या बोलते हैं सही जजमेंट देने के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई तेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा वैसा ही करना पड़ेगा. फॉर दिस पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविज़न. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं. जैसे फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस. एलिजिबिलिटी म्हणजे कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह रहती है, कुछ डिग्रीज़ वगैरह रहती है, वो सब अगर है अपने अंदर जज बनने के पहले तो यू हैव टू सिंपली बिकम अ लॉयर. पहले लॉयर बनना पड़ता है, फिर अनुभव से जज बनते हैं और जज का एग्ज़ाम, जज का इंटरव्यू इज़ अ वेरी टफ टास्क. A legal expert or one having served as a high court judge or an experienced advocate is considered eligible. तो कौन एलिजिबल रहता है? एक तो कोई लीगल एक्सपर्ट रहता है, म्हणजे लॉ का एक्सपर्ट रहता है, या फिर कोई हाई कोर्ट का जज हो चुका है
या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है तो उसको एलिजिबल है, म्हणजे वो फिट है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के. जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दिस हेल्प्स टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर. जजेस एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. म्हणजे टेन्योर म्हणजे टर्म पीरियड. उनका टर्म पीरियड ख़त्म नहीं होता जब तक उनको कोई निकाल नहीं सकता. जजेस एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मीन्स टर्म पीरियड. They cannot be removed from the post for tribal reasons or for political motives. उनको उनके पद से कोई नहीं हटा सकता जब तक उनका टाइम नहीं होता है, कोई उसमें पॉलिटिकल इश्यूज नहीं आते हैं या फिर पर्सनल राइवलरी की वजह से वो नहीं निकाल सकते हैं. द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ 65 years. While for High Court it is 62 years. तो यहाँ एक बार जज बन गए तो 65 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई नहीं निकाल सकता और हाई कोर्ट के जज को भी कोई नहीं निकाल सकता. अंडरस्टैंड? इट इज़ ऑन पेज नंबर, आई हैड टेकन द पिक्चर वेयर इट हैज गॉन. Okay, you please see on page number 80. The salaries of judges are drawn from the consolidated funds of India. No discussion takes place in parliament. इनकी सैलरीज कहाँ से मिलती है? तो एक कंसोलिडेटेड फंड इंडिया का रहता है, म्हणजे जमा किया हुआ. कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कलेक्टेड. नो डिस्कशन, इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई बिल पास नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता. पर्सनल क्रिटिसिजम्स कैनॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजन. अगर उसकी जजमेंट आपको पसंद नहीं आई तो आप उसके क्रिटिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो जज है. वो जो जजमेंट देगा वो आपको मानना पड़ेगा. आप बोलेंगे मैं उसकी निंदा करता या उसके एक्ट की निंदा करता, तो वो नहीं करना चाहिए. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ कंसिडर्ड इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का कहना नहीं मानना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट. चिल्ड्रन प्लीज़ वॉच ऑन पेज नंबर 80. आई हैड टेकन द फोटोग्राफ बट आई डोंट नो वेयर इट इज़ मिसिंग. सो प्लीज़ वॉच पेज नंबर 80 in your book. Okay. So personal criticism cannot be made on judges for their acts and decision. Contempt of court is considered as a punishable offense. This not only protects the judges from misguided, wrongful criticism, but also preserves the independence of judiciary. Contempt of court अगर नहीं हुआ तो ये जज को एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है मिसगाइड मतलब गैर समझ या फिर कोई गैर सल्ला देना. रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म म्हणजे गलत क्रिटिसिज्म करना. बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी म्हणजे वो अपनी आज़ादी से अपने डिसीजन दे सकते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है अपने तरीके से अपने डिसीजन देना. उसके भले ही वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उन पर कोई तरह का प्रेशर या दबाव नहीं आना चाहिए. द पार्लियामेंट कैनॉट डिस्कस द डिसीजन ऑफ द जजेस. पार्लियामेंट जज के डिसीजन डिस्कस नहीं कर सकता. However, it has right to remove the judges from their position through the impeachment procedure. ये impeachment procedure is a all over India it's a same procedure. जैसे प्रेसिडेंट को हटाना है या प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो सब में impeachment procedure मतलब अविश्वास मत. जजेस को सिर्फ और सिर्फ अविश्वास मत से हटा सकते हैं और उसके लिए बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है. ऐसे ही कोई हटा नहीं सकता है. Judicial activism. Traditionally, the court settle the dispute whenever they are approached for that purpose. Traditionally म्हणजे परंपरागत. परंपरा से अपने कोर्ट ही सेटल करती है कोई भी झगड़ा. अगर कोर्ट में आपने डाला तो, अगर कोर्ट में आपने केस फाइल किया तो फिर कोर्ट उसको निर्णय देंगी. In the last few decades, the image of the court has undergone a change and they have become increasingly active.
अभी कुछ सालों में कोर्ट की इमेज जो है वो बहुत चेंज हो गई है और दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली एक्टिव, म्हणजे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बन गए हैं। जज के जो कोर्ट के जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बन गए हैं, म्हणजे दे डोंट वर्क अंडर प्रेशर। दिस मीन्स दैट द कोर्ट नाउ सीक्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। न्याय और समानता का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ध्येय है वो, इसका मतलब ये है कि चेंज क्या आया है, इंक्रीजिंगली एक्टिव बने हैं, तो क्या बने हैं, क्या करते हैं ये लोग, तो दे फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल? जस्टिस एंड इक्वालिटी। The court has tried to provide legal protection to the marginalized sections in society, women, tribal workers, farmers and children। म्हणजे कोर्ट ने ये ट्राई किया है कि इनको मार्जिनलाइज सेक्शन म्हणजे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको, औरतों को, ट्राइबल वर्कर्स को, फार्मर्स को और बच्चों को कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, म्हणजे ट्राई टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन। लॉफुली अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो कोर्ट उसका हिसाब किताब लेती है, उनको गवर्नमेंट वकील दिया जाता है, उसके लिए उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड, म्हणजे वही गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर अपॉइंट किया जाता है, तो वो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एज अ फेडरल कोर्ट इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरल कोर्ट का मतलब सेंटर और स्टेट मिला के एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सेंटर की अलग सुप्रीम कोर्ट, स्टेट की अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं है। फेडरल कोर्ट इसलिए बोला जाता है कि सेंटर के और स्टेट के सभी मामले सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाती है, स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स ऑन द अदर। It may also give orders to relevant authorities for protection of the fundamental rights of citizen। कोर्ट रेलेवेंट अथॉरिटी म्हणजे कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जैसे स्टेट है तो गवर्नर उसका हेड रहता है, सेंटर का है तो प्रेसिडेंट उसका हेड रहता है, तो ऐसे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। टू रिव्यू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, म्हणजे दूसरे, अभी आपने लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला, फिर आपने हाई कोर्ट में डाला, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में डाला, म्हणजे सुप्रीम कोर्ट उन दोनों का डिसीजन ज़रूरी नहीं है, उन दोनों ने जो डिसीजन दिया है वही सुप्रीम कोर्ट देंगी, तो उनके डिसीजन खुद के रहते हैं। जैसा नहीं लोअर कोर्ट में आप अगर केस हार गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाओ। कहने का मतलब है वो उनका डिसीजन खुद दे सकते हैं। इन केस द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। प्रेसिडेंट अगर पूछता है कोर्ट का एडवाइस अगर लीगल एस्पेक्ट के लिए कि भाई ये वहाँ से आया है तो इसका क्या मामला क्या है, ऐसे करके इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस अगर महत्व का रहा, जैसे कि भाई वो केस हुआ था ना, नीरजा क्या थी वो लड़की, उसका केस हुआ था, तो वैसे केसेस में प्रेसिडेंट मीडिएट कर सकता है और पूछ सकता है कि क्या है ये और आप लोग इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। रीड द पैराग्राफ एंड राइट जुडिशियल रिव्यू। अभी देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंट्रस्टेड टू सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, संविधान के खिलाफ जाके या संविधान में जो लिखा ही नहीं है वैसी जजमेंट नहीं देना है, संविधान के अनुसार ही इनको जजमेंट देना है और संविधान के अनुसार जो भी जिस भी वर्ग को प्रोटेक्शन चाहिए
या कुछ चाहिए, जो भी संविधान में लिखा है, कहने का मतलब उसको इनको फॉलो करना है। यू आर अवेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपना सबसे बड़ा लॉ है, म्हणजे उसमें सब लिखा है कौन से चीज़ के लिए किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लॉ दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को भी ये हक नहीं है कि कोई नया लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को रद्द करेगा। एवरी एक्ट और पॉलिसी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पॉलिसी या एक्ट आप एग्जीक्यूटिव द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, वो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मैच होना चाहिए। कंसिस्टेंट म्हणजे वो कंटिन्यू में वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इन्होंने जजमेंट दी है। इफ एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर or any act of the executive violates the any provision of the constitution, the said law or act is declared illegal and struck down by the court। अगर आप कोई भी लॉ को पास करते हो, एग्जीक्यूटिव समझो, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी अगर कोई लॉ को पास करता है और वो संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन करता है, अगर वो संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन करता है, मीन्स वायोलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे लॉ को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है एंड स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। कोर्ट द्वारा उसको रद्द किया जाता है। दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट के इस पावर को अपन जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे। कौन से पावर को? जो अगर एग्जीक्यूटिव वायलेट करता है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ इज सेड टू बी इलीगल लॉ एंड इट इज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। दिस पावर ऑफ कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। शुड द कोर्ट हैव सच राइट? ऑफ कोर्स, टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी। उसको वो राइट होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर उसको सुप्रीम बताना है अपने आप को, तो वो राइट उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। Court has asked the candidates contesting in elections to declare their property and income details and educational qualification through an affidavit। कोर्ट ने क्या किया है, कोई भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट म्हणजे जिसने केस डाला है, या फिर कैंडिडेट जो इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, इलेक्शन में जो भाग लेता है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी एंड इनकम डिटेल की सर्टिफिकेट फाइल करनी पड़ेगी और उनका खुद का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट म्हणजे उसमें नोटरी के सही सिक्के होने चाहिए। द एम वॉज टू एंश्योर दैट द वोटर्स विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। इसके पीछे ध्येय ये है कि वोटर जानेंगे कि जो भी इंसान खड़ा है वो कहाँ तक सही है। अगर उसकी पढ़ाई अलग है, उसका कुछ अलग है, तो फिर ये जो है, ये कैंडिडेट्स जो है, तो वो जो भी हिस्सा लेना चाहता है इलेक्शन में, कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन को, उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको टिकट नहीं मिलती है। इज दिस नॉट एन अटेम्प्ट टू मेक आवर इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट? येस, ऑफ कोर्स। आर देर एनी मोर सच ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट? म्हणजे ऐसे कानून के द्वारा का इलेक्शन की पारदर्शिता प्रभावित होती है और पार्टी भी, जो भी सच्चाई के रास्ते पे जो पार्टी चल रही है, वही हिम्मत करेंगी ऐसे इंटरेस्ट लेने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL शॉर्टली कॉल्ड एज, रेफर्स टू लिटिगेशन। लिटिगेशन म्हणजे आपके खिलाफ जो भी लगाया जाता है इल्ज़ाम, समझ में आया? लिटिगेशन इज इल्ज़ाम फाइल्ड ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बाय इंडिविजुअल सिटीजन, social organization or not governmental organization on behalf of all the people. The court thinks over the question raised and give its decision. कोर्ट जब देखती है कि क्या सही है क्या गलत है और फिर खुद का डिसीजन देती है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू के बारे में, और ये हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट। The Indian Constitution confers the Parliament with power to establish High Court, and in each constituent state in Union Territory,
करंटली देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. म्हणजे ये संविधान में क्या लिखा है, संविधान ने पार्लियामेंट को इतना पावर दिया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाई कोर्ट आप इस्टेब्लिश कर सकते हो. करंटली देखो स्टेट्स कितने हैं, 29 है, और हाई कोर्ट्स कितने हैं, 24 ही है. म्हणजे कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है. देर इज चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ दूसरे जज भी रहते हैं. ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. हर एक जज को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. द बॉम्बे हाई कोर्ट्स jurisdiction covers the states of Maharashtra, Goa and Union territories of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. म्हणजे बॉम्बे हाई कोर्ट जुरिडिक्शन में क्या क्या कवर होता है. महाराष्ट्र तो कवर ही होता है, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. Find out 2 other such examples where High Court has jurisdiction over more than one state. एक से ज़्यादा स्टेट पे कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स 29 है और हाई कोर्ट्स 24 ही है. तो बहुत सारे ऐसे 2-3 सेट होंगे स्टेट के जिन्होंने इनके साथ समझौता कर लिया है. Find out other 2 such examples where the High Court can be jurisdiction over more than one state. Functions of High Court: to supervise and maintain control over the lower courts in its jurisdiction. उसके हद में जो लोअर कोर्ट आती है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है उसका सब देखभाल करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मेंटेन करना. अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन के ये ऑर्डर दे सकती है. ये प्रेसिडेंट को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है. हालांकि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वक्त पड़े तो प्रेसिडेंट को भी ये कटघरे में खड़ा कर सकते हैं. ये पावर है सुप्रीम कोर्ट का. डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स: दीज आर द कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील तालुका लेवल. पीपल जनरली गो टू दीज कोर्ट्स. एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ 1 डिस्ट्रिक्ट जज. हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट जज रहता है. लोग तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं. द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया: देर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. Civil law: this law deals with conflicts which affect or interfere with the rights of person. ये क्रिमिनल लॉ ऐसा है जो लोगों के जीवन में इंटरफियर करता है और लोगों का हक तक ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, डिवोर्स, ये सब सिविल में जाता है. कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग लैंड को लेके कोई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा, डिवोर्स होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, तो ये सिविल लॉ के तहत आता है. आफ्टर फाइलिंग अ पिटिशन इन द रेलेवेंट कोर्ट, द सेड कोर्ट गिव्स अ डिसीजन. अगर आपको उस कोर्ट से कुछ उम्मीद है, आपको डिसीजन चाहिए, तो आपको पिटिशन फाइल करना पड़ता है, एक लॉयर ढूंढना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर करना पड़ता है. तो दोस्तों ये हुआ सिविल कोर्ट. अब क्रिमिनल कोर्ट: सीरियस क्राइम्स आर डेल्ट अंडर क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट में बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, म्हणजे बहुत बार तो कोर्ट में भी चाकू मार के चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, रॉबरी, डाउरी, मर्डर एक्सेट्रा. इन दीज केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल FIR. FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. क्रिमिनल लॉ में FIR के बिना वो दर्ज करते ही नहीं विद द पुलिस. द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द मर्डरर, police investigates the matter and then a petition is filed in the court. पुलिस उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है पहले, FIR की रिपोर्ट फिर दर्ज होती है कोर्ट में. इफ़ द चार्जेस आर प्रूव्ड देयर आर प्रोविजन फॉर सीवियर पनिशमेंट. अगर चार्जेस आपके प्रूव हो गए, FIR के द्वारा जो लिखा गया वही पाया गया है, तो फिर आपको पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता. Indian judiciary has made a significant contribution in the development of country. इंडिया की जुडिशियल सिस्टम ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है कंट्री को डेवलप करने में. कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम. आम आदमी का बहुत ज़्यादा विश्वास है और बहुत ज़्यादा आदर करती है आम आदमी कोर्ट को. जुडिशियरी इन इंडिया
हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, फेडरल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने क्या क्या प्रोटेक्ट किया? इंडिविजुअल की फ्रीडम तो प्रोटेक्ट किया ही है, फेडरल सिस्टम जैसे आपको बताया गया, फेडरल सिस्टम म्हणजे हाई सुप्रीम सेंटर में भी रहना और स्टेट में भी रहना एक जैसा, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोर्ट्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।